قرآن ہم ختم کرتے ہیں 27 کو، جو 27 رات ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے مسجد میں ہمیشہ 27 کو ہی یا اراؤنڈ اسی کے ختم کرتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ہے کہ اگر آپ ایک رکوع جو ہے ایک رکعت میں پڑھتے ہیں تو ایک دن میں آپ 20 رکوع پڑھتے ہیں، تو اس کو انہوں نے ڈیوائڈ کیا. ٹوٹل رکوع جو قرآن کے ہیں وہ 540 ہیں. تو اگر ایک اسی طرح سے 27ویں تک آپ کے پورا قرآن ختم ہو جاتا ہے. اور ایک کئی قرآن ایسے ہیں جس کے اندر آپ کو منزلوں کے نشان ملیں گے. 7 منزل جیسے کہتے ہیں کہ جنہوں نے 7 ڈیز میں قرآن ختم کرنا ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ نشان ہے، یہ آسانی کے لیے دیے ہوئے ہیں. تو آئی ہوپ انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا. اب انشاءاللہ جیسے ہم اپنے پروگرام کا ہمیشہ سے آغاز کرتے ہیں، خاص طور پہ میری اسٹوڈنٹ ہے، بہت پیاری اسٹوڈنٹ ہے سمینہ قریشی، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. وہ اتنی محنت کرتی ہیں، جو خاص طور پہ حفظ کے اسٹوڈنٹ کے لیے وہ علیحدہ سے وہ ریکارڈنگ کرتی ہیں، اور ریکارڈنگ میں سے پک کر کے وہ ریکارڈنگ بناتی ہیں، پھر سب کو ان کی آسانی کے لیے دیتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جزا دے. بہت کام ہوتا ہے جب وہ کر رہی ہوتی ہے، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ دیکھو ہزاروں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو خاص کام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ان کا قبول کرے جتنی وہ محنت کرتی ہیں. کیونکہ وہ تجوید کی کلاس میں بھی ہیں، اور وہ اس کے بعد تجوید کا بھی وہ سبق ایسے ہی ہوتا ہے کہ پورا 1 گھنٹے کا یا آدھے گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے. اس میں سے وہ پورا جو ہم نے یاد کرنا ہوتا ہے اس کو وہ ریکارڈ کروا کے اسی میں سے پک کر کے پھر اس کو سب کو بھیج دیتی ہے. تو تھینک یو ویری مچ سمینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تم اس کی جزا دے، آمین ثم آمین. اب ہم انشاءاللہ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. ہمیشہ کی طرح ہم ایک حدیث سے کرتے ہیں، جیسے مشکات المصابیح کی حدیث ہے. جلد نماز پڑھنے کا بیان جو ہے اس سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز بھول جائے تو یا اس سے غافل ہو کر سو جائے. اب یہ غور کرنے کی بات ہے، کیونکہ اکثر ہمارے یہ پرابلم ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ہم آفس میں ہے یا گھر میں فار ایگزامپل پارٹی ہے، شادیاں ہیں، یا ایسا سیزن آتا ہے نا، تو بندہ اتنا مصروف ہوتا ہے کہ ایک دم سے عصر کی اذان ہوتی ہے تو لگتا ہے اوہو میں نے تو ابھی ظہر نہیں پڑھی ہے. بہت اللہ نہ کرے ویسے ہو جاتا ہے نا، انسان ہے تو تبھی تو حدیث بھی ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہم اتنا تھکے ہوتے ہیں اور ہم سوچیں ہم تھوڑی دیر کے لیے نا بس لیٹتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے. لیکن جیسے ہی ہم لیٹتے ہیں ہمیں اتنی گہری نیند آ جاتی ہے کہ جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو پھر ہمیں گلٹ ہوتا ہے کہ میری تو نماز چلی گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا کہ جو نماز بھول جائے یا اس سے غافل ہو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے پڑھ لے. ٹھیک ہے، ڈونٹ میک اٹ اے ہیبٹ کہ ٹھیک ہے جی میں تو بعد میں جب بھی یاد آئے گی پڑھ لوں گی. لیکن اس کا صرف کفارہ یہ ہے کہ the moment آپ کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی، تو جیسے ہی آپ کو یاد آئے آپ فوراً پڑھ لیں. اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا کفارہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کہ آپ کو جیسے ہی یاد آتی ہے فوراً اپنی نماز جو قضا نماز ہے اس کو پڑھ لیں. اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بہت دفعہ آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نماز جو چھوٹ گئی، جیسے فار ایگزامپل پہلے کی نمازیں تھی، مجھے عادت پڑی فار ایگزامپل 40 سال کی عمر میں آ کے جیسے 5 وقت کی نماز مجھے تبھی اسلام کی پراپر سمجھ آئی تھی تو میں نے اس کے بعد نہیں چھوڑی. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب سے میں حج کر کے آئی ہوں میں نے نماز نہیں چھوڑی. میں اس طرح سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ پھر ہوتا ہے کہ جو پچھلی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جو چھوٹ گئی ہیں وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کریں گے، لیکن آگے آپ نہیں چھوڑنا. لیکن اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ the moment آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کی نمازیں چھوٹی تھی تو آپ کو جیسے ہی یاد آئے گا پھر آپ اپنی قضا نمازیں پڑھنا شروع کر دیں. اب دوسری حدیث میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو جانے میں کوتاہی قصور نہیں ہے، کوتاہی صرف بیداری میں ہے.
تو جب کوئی نماز بھول جائے یا اس سے غافل ہو کر سو جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری یاد کے وقت نماز قائم کرو۔ اب دیکھیں بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے، میں نے خود کسی سے سنا تھا، انہوں نے کہا جی جب نماز جیسے، کیونکہ مجھے تو صبح میری آنکھ نہیں کھلتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سوئے ہوئے جو ہے نا ان کی پوچھ نہیں ہے، جان بوجھ کے نہیں ہم ایسے کر سکتے، اگر آنکھ کھلی نہیں ہے تو تب کی بات ہے۔ اور وہ کیا کرتے تھے کہ ایوری ڈے وہ اٹھتے تھے آرام سے، جیسے فار ایگزامپل 12 بجے اٹھ گئے، 11 بجے اٹھ گئے، پھر آرام سے جی اب کیا پڑھ رہی ہیں آپ؟ تو وہ جی میں فجر کی نماز پڑھ رہی ہوں، کیونکہ میری تو آنکھ نہیں کھلی تھی۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، میں اس لیے کلیئر کر رہی ہوں کہ یہ ہوتا ہے، میں نے خود سنا ہے نا۔ تو یہ میک شور کریں کہ اگر آنکھ لگ جائے، انسان کی نیت نہیں تھی، اس کی پوری یہ نیت تھی کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، لیکن اس کی آنکھ نہیں کھلی، تو اس وقت پھر پکڑ نہیں ہے۔ دا مومنٹ آپ کی آنکھ کھلتی ہے آپ وضو کریں گے اور نماز پڑھ لیں گے الحمدللہ۔ اب ہم آتے ہیں اپنی ریگولر سبق کی طرف کہ سورۃ آل انعام۔ سورۃ آل انعام جو ہے نا یہ پہلی بیسیکلی ایک لمبی سورہ ہے، مکی سورہ جو ہم پڑھیں گے۔ پہلے جو ہم نے الحمد پڑھی تھی نا دیٹ از اے مکی سورہ، لیکن اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ الحمد جو ہے یہ مکہ میں بھی نازل ہوئی تھی اور مدینہ میں بھی نازل ہوئی تھی۔ تو اگر یہ والی حدیث سے ہم لیتے ہیں تو تو پھر یہ والی پہلی وہ سورہ ہے پوری کہ پوری جو مکہ میں نازل ہوئی، لیکن اس کی سب سے بڑی بات ہے یہ ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی۔ دیکھیں اتنی بڑی سورہ ہے، اور اس سوائے اس کے کہتے ہیں کہ اس میں کچھ 6 آیات ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جہاں ان کا مقام تھا ان کو وہاں پہ رکھوا دیا تھا۔ باقی پوری سورہ ایک وقت میں نازل ہوئی۔ اور حضرت اسما جو ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اونٹنی تھی اس کی لگام پکڑے ہوئے تھی، تو جس وقت یہ سورہ نازل ہوئی تھی تو اس کے بوجھ سے یوں لگ رہا تھا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، مطلب اتنا بوجھ تھا اس وقت۔ اور پھر اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہو رہی تھی تو 70,000 فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ یہ سورہ لے کے نازل ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مشرق سے مغرب تک وہ ان کی جو تسبیح تھی جو وہ فرشتے پڑھے تھے اس سے آواز گونج رہی تھی، اور اتنی حفاظتوں میں یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ اور یہ کیوں؟ کیونکہ یہ مکی دور کی سورت ہے، اور مکی دور میں بالکل کہتے ہیں کہ آخری سال کائنڈ آف 1 سال پہلے ہجرت کے یہ سورہ نازل ہوئی تھی۔ اب اس سورت کا جو اصل جو ٹاپک ہم دیکھیں گے پہلے، کیونکہ ہم نے ساری مدنی سورہ پڑھی تھی، اور مدنی سورہ میں احکامات جو ہم نے سورۃ مائدہ میں دیکھے تھے، کیونکہ یہ پہلی جب مکہ میں مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تھے تو پہلی دفعہ ریاست ایک بنی تھی جہاں پہ لوگوں کو پھر رولز اینڈ ریگولیشن کی ضرورت تھی، لیکن ابھی مکہ میں تو لوگ ابھی اس طرح سے نہیں تھے نا، ان کی اپنی ایک علیحدہ سے حکومت ہی تھی۔ تو مکی دور کی جتنی بھی صورتیں آپ پڑھیں گے نا اس کے اندر آپ کو بار بار ایک ہی چیز ملے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید پہ بات ہوگی، رسالت پہ بات ہوگی، اور آخرت پہ بات ہوگی۔ یہ 3 ٹاپک ہوں گے جو آپ کو پوری مکی سورہ میں ملیں گے، اور یہ وہ مکی سورہ اتنی خوبصورت ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا آیت الکرسی میں۔ اب پوری آیت الکرسی اپنے ذہن میں رکھیں، اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اپنا تعارف کرائیں گے۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جس کو توحید سمجھ آ گئی نا اس کو تو سارا کچھ ہی سمجھ آ گیا، پھر اس کے بعد اس کو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں وہ کام کروں جو میرے رب کو پسند ہے، اس کو محنت نہیں کرنی پڑتی، اس کو اپنے آپ کو فورس نہیں کرنا پڑتا، اس کا دل کرتا ہے وہ سارا کچھ کرنے کو۔ اب یہاں پہ اس سورہ کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس دور میں لے جاتی ہوں جس وقت یہ سورہ نازل ہو رہی تھی، تاکہ آپ اس کو انجوائے کر سکیں، آپ اپنے آپ کو اس دور میں لے جائیں۔ کیونکہ جب میں کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب میں کوئی ایسی سورہ پڑھتی ہوں کہ اچھا یہ اس دور کی بات ہے، کیونکہ اب پوری سیرہ پڑھ چکے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ میں اس دور کے اندر کھڑی ہوئی ہوں، اور میں بھی پارٹ آف دس جب یہ آیا نازل ہو رہی تھی تو آئی واز دیئر، اور میں دیکھ رہی تھی اور میں سن رہی تھی اور میں محسوس کر رہی تھی کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے۔
تو इंशाल्लाह आप भी वैसे ही फील करेंगे कि ये सूरह जो नाजिल हुई है ना, ये हो रही थी मक्की दौर के आखिरी 1 साल में। तो उस वक्त क्या था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शैब अबी तालिब का जमाना था ना, वो गुजर चुका हुआ था। और उसी वक्त में फिर ये क्या हुआ था कि जैसे ही वहां से 1 साल 2 साल काइंड ऑफ टाइम था, जिसमें जैसे शैब अबी तालिब के 6 से 8 महीने भी अभी नहीं गुजरे थे कि अबू तालिब की वफात हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये सबसे बड़ी क्योंकि उनको सबसे बड़ी अमान जो थी ना, वो अबू तालिब की थी। और अबू तालिब कौन थे? जो उनके चचा थे, जिन्होंने उनको पाला हुआ था, और वो सरदार भी थे। उसके अलावा देखें ये था कि उनकी वजह से उनका कल्चर था ना वहां पे कि जिसको अपनी अमान में ले लेते थे तो उसको कोई तकलीफ नहीं दे सकता था, उसको वो हिफाजत में आ जाता था। अब अबू तालिब की वफात के बाद कुछ ही देर के बाद क्या हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी जो थी हजरत खदीजा, उनकी वफात हो गई। अब इतने बड़े 2 दुख थे, ये दुख तो अपनी जगह थे, लेकिन अब ये था कि लोगों को मौका मिल गया कि उनको तंग करने के लिए। अब उनको पता था कि अब तो कोई हमें नहीं रोक सकेगा। अब हुआ क्या कि जैसे इनकी अबू तालिब की वफात हुई तो अगला सरदार जो बनना था, तो उनमें से कौन बचे थे? अबू लहब बचे थे। द रीजन इज कि जो अब्बास थे और हमजा थे, हजरत अब्बास और हजरत हमजा थे, वो इस्लाम ले आए हुए थे, तो डेफिनेटली अब एक ही बचे थे अबू लहब, और हजरत अबू लहब बचे थे। और अबू लहब जो थे उनका ये था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने अगेंस्ट थे। आपने वो पढ़ा ना, सूरा भी उनके बारे में पढ़ी। तो उस वक्त फिर ये हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने परेशान थे, और ये वो वक्त था कि जब वो फिर ताइफ में गए, और ताइफ में इसलिए गए थे कि वहां पे उनको ये था कि शायद लोग मेरी वहां पे बात सुन लेंगे और मैं वहां पे जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम देता हूँ। लेकिन वहां पे भी लोगों ने नहीं सुना। वो आपने वाकया सुना हुआ ताइफ का। ये सिचुएशन थी उस वक्त, जिस वक्त ये सूरह नाजिल हो रही है ना, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। अब ताइफ से जब वापस आए, जब लोगों ने वहां पे पैगाम नहीं सुना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान थे। फिर वापस जब मक्का आने की कोशिश कर रहे थे, तो मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्योंकि वापस दाखिल होने में भी किसी के चाहिए होती थी ना, अमान चाहिए थी, तो वो भी एक बड़ा मुश्किल वक्त था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं चाह रहे थे कि वो मक्का छोड़ के मदीना जाए, क्योंकि मक्का में पैदा हुए थे, अल्लाह का घर था उधर, उनका उनके सब कुछ उधर था, और वो नहीं चाह रहे थे छोड़ना। लेकिन इतने हालात खराब हो गए थे कि उनको मजबूरन मदीना की तरफ हिजरत करना पड़ी। इसी दौरान में कुछ लोगों ने जैसे हबशा की तरफ भी, मैंने आपको एक दफा बताया था, हिजरत की थी। तो ये दौर बड़ा मुश्किलों का दौर था, और उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कि तमाम की तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। देखिए, अक्सर ये होता है कि हम जब उर्दू में बात करते हैं ना, तो हम उसका हक नहीं अदा कर सकते, क्योंकि हमें ये लगता है ओके, तारीफें अल्लाह के लिए हैं तो हम तो तारीफ करते हैं ना, जैसे किसी की और सही भी तारीफ कर देते हैं, कभी ऐसी झूठी तारीफ भी कर देते हैं, किसी को बटरिंग करने के लिए भी तारीफ कर देते हैं। तो तारीफ का वो जो एक एक बात है ना, वो हमारी जहन में नहीं आती है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं सब की सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। तो हमारे जहन में ये सवाल आता है, तो फिर क्या हम किसी की तारीफ ना करें? क्या आप फिर देखें, जैसे माँ बाप हैं, उनको उन्होंने हमारी परवरिश की होती है, उनकी वजह से हम उनका शुक्र अदा करते हैं। हमें कोई हमारे साथ कोई अच्छा सलूक करता है, हम उसका शुक्र अदा करते हैं, शुक्रिया कहते हैं। इस तरह से कोई भी चीज, हमारे टीचर होते हैं जो हमें पढ़ाते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो कहा कि सब की सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, तो यहाँ पे आप ये देखिए कि अगर इसको आप उस एंगल से थोड़ा सा समझे कि तारीफ जो है ना, एक होता है हम बयान करना। हम वो है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी फूल को देखा, आप उसकी खुशबू आपको अच्छी लग रही है, या आप उसको रंग अच्छा लग रहा है, तो आप उसकी मदाह बयान करते हैं, आप उसकी तारीफ करते हैं।
اب اگر آپ نے کسی یوٹیوب میں کوئی ایک ایسا لیکچر سن لیا، بہت اچھا لیکچر تھا، اور آپ نے کہا واو، وہ آپ حمد بیان کرتے ہیں، جیسے حمد وہ ہوتا ہے کہ تعریف کرتے ہیں کہ کیا اچھی بات تھی، مجھے بہت اچھا لگا۔ اب اگر کوئی آپ کی ضرورت پوری کرتا ہے، آپ اس کو بے شک نہیں جانتے، لیکن اگر آپ کی کوئی ضرورت تھی، کسی نے آپ کی ضرورت پوری کی، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے، اور آپ اس کی سخاوت کی تعریف بھی کریں گے۔ یہ جو الحمد ہے نا، اس کے اندر ایک تو شکر آ جاتا ہے اور ایک تعریف دونوں چیزیں مکس ہو جاتی ہیں۔ تو پھر اس اینگل سے آپ اس کو دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تمام کی تمام تعریف، اور الحمد اس تعریف کو کہتے ہیں جس کے اندر خوف نہیں ہوتا، اللہ کے لیے ہے۔ الذی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس کی حمد ہے؟ الذی، وہ جس نے، کس کی تعریفیں؟ وہ جس نے خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمان کو، والارض، اور زمین کو۔ اب دیکھیے آسمان اور زمین، سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جو تعارف کرا رہے ہیں کہ اللہ کون ہے، کیونکہ ہمیں اکثر ہوتا ہے نا کہ بس ایسے ہی گزار دیتے کہ الحمدللہ رب العالمین، اور پھر ہم اس کو سوچتے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ذرا سوچو کہ آسمان، اتنا بڑا آسمان جو بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے، جو تم دیکھتے ہو، اتنی جب سے دنیا بنی ہے، کیا کوئی پرانا لگتا ہے؟ کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ آسمان اوپر سے گر جائے گا کبھی؟ کتنی بڑی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ ملک میں اس کے بارے میں کیا کہا تھا، ہم تھوڑا سا وہ دیکھتے ہیں۔ بہت خوبصورت آیت ہے کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ کون ہے؟ جس نے ساتوں آسمان طباقا، اوپر تلے 7 آسمان بنائے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ تم اس کے اندر کوئی خلل نہیں دیکھو گے، ما ترا، تم نہیں دیکھو گے، فی خلق الرحمن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق میں، من تفاوت، کوئی بھی نقص نہیں دیکھو گے۔ فرجع البصر، کہ پھر لوٹاؤ اپنی نظر کو، ہل تری من فطور، کہ تمہیں کوئی شگاف نظر آئے گا اس میں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم ارجع البصر، پھر اپنی نگاہ کو دوڑاؤ، کرتینی، بار بار دیکھو، ینقلب، وہ لوٹ آئے گی، الیکا، تمہاری طرف، الیک البصر خاسئا وہو حسیر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بالکل خسیر، کہتے ہیں نا ذلیل و خوار ہو کے تمہاری نگاہ واپس آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تخلیق کی بات یہاں پہ کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سجایا اس کو، زین کیا، سما دنیا، دنیا آسمان دنیا کو، بِمَصَابِیحَ، کسی ستاروں کے ساتھ اس کو سجایا، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، اور بنایا ہم نے انہیں مارنے کے لیے شیاطین کو۔ یہ شہاب ثاقب کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب رکھا ہے۔ کن کے لیے؟ جو شیاطین کیا کرتے تھے، وہ اوپر جاتے تھے اور اس وقت خبریں لے کے آتے تھے، جب تک وحی کا سلسلہ نہیں شروع ہوا تھا۔ اور جب وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد شہاب ثاقب جو تھے، جب شیاطین اوپر جاتے تھے تو وہ ان کو مارتے تھے۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بیان کرتے ہیں، اور اپنی اس تخلیق کے بارے میں کہ آسمان کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے۔ اب دیکھیے پھر زمین کی بات جب ہوتی ہے تو زمین آپ دیکھیے کس طرح سے تیزی سے گھوم رہی ہے۔ ہمیں سب کو پتہ ہے زمین اپنے مدار کے گرد گھومتی ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہمیں بیٹھے ہوئے جھٹکے لگ رہے ہوں یا ہم الٹ پلٹ ہو رہے ہوں؟ اب گاڑی تیز چلاتے ہیں تو ایک دم سے دل بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ گاڑی آہستہ چلاؤ، بہت تیز ہے، ہوتا ہے نا ایسے۔ اگر کبھی ایسی جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں جو تھوڑی اونچائی کی طرف ہوتی ہے تو ہمیں وامٹنگ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے اپنی وہ تخلیق کے بعد خالق، اس کو کہتے ہیں وہ تخلیق جو پہلے سے کچھ نہیں تھا، کن فیکون، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کن سے وہ فیکون ہوئی تھی۔ اور آسمان اور زمین کی بات کر کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ، اور بنائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اندھیروں کو،
अंधेरे क्या, देखिए ये जमा है, अंधेरों की बात यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने की कि जुल्मात जो अंधेरे हैं वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाए, व नूर और रोशनी, व नूर वाहिद, एक रोशनी हदायत का एक ही रास्ता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे देखिए इतनी खूबसूरत बात लगती है जब ये समझ आती है कि जहां पे आसमान और जमीन की बात हुई वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खालका का लफ्ज इस्तेमाल किया, और जहां पे जुल्मात और नूर का हुआ वहां पे जाअला का लफ्ज इस्तेमाल किया, क्योंकि जमीन और आसमान जो ना ये वजूद है, हम देख सकते हैं ना जमीन आसमान, और जुल्मात और नूर जो है ये हमारे, ये हम उनको हम उसका वजूद नहीं है। तो बेसिकली ये उस जमाने में आप वापस जाएं जब पे शिर्क इतना ज्यादा हो रहा था, लोग सूरज को पूज रहे हैं, चांद को पूज रहे हैं, हवाओं से डर रहे हैं, बुतों को पूज रहे हैं, मट्टी से बनाए हुए बुत थे ना जिनको पूजते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जमीनों आसमान और उसके दरमियान जितनी चीजें हैं, नूर है, जुल्मात है, वो सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की मखलूक है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सुम्मा लजीना कफरू, फिर वो लोग जिन्होंने कुफर किया। कुफर किन्होंने किया था? जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं माना था, जिन्होंने कुरान की आयत का इनकार कर दिया था। आप एक बात अपने जहन में रखें कि ये पूरी सूरह में ज्यादातर 90% खिताब जो है ना ये मुशरिकीन मक्का से है। अब मुशरिकीन मक्का हमारे ज़हन में आता है कि आखिर उनका मजहब क्या था, वो क्या करते थे, उनको जब ये दावत दी गई थी तो उन्होंने क्यों कबूल नहीं की थी? मुशरिकीन मक्का जो थे ना ये अल्लाह को मानते थे, अल्लाह को मानते थे, अल्लाह की नहीं मानते थे। मुशरिकीन मक्का जो थे ये हज जो हम कहते हैं ना खाना काबा का तवाफ भी करते थे, और ये खाना काबा के मतवल्ली भी थे। इसीलिए तो बदर की जब जंग हुई थी तो अबू जहल जब जा रहे थे तो खाना काबा का गुलाफ पकड़ के अल्लाह सुब्हानहू तआला से कह रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो गलत है उसको आज तू उसको खत्म कर देना, वो जो सारी एक हदीस आती है। तो किस तरह से उन्होंने ये दुआ मांगी थी और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर वही किया कि बदर के जंग में वो मारे गए थे। तो ये ऐसा नहीं था कि उनको अल्लाह की पहचान नहीं थी। और खाना काबा में बुत भी बहुत बाद में आए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में जब खाना काबा बना था उसके बहुत बाद में उसमें बुत आए थे। तो ये क्या करते थे, बुत जो बनाए हुए थे ना इन्होंने, ये उसको क्या कहते थे कि ये अल्लाह से हमारे लिए दुआ करेंगे, हम इतने गुनाहगार। क्योंकि देखिए जब ये तवाफ करते थे ना तो ये कपड़े नहीं पहने होते थे, बस थोड़ा सा जो भी ढांका होता तो बाकी वो सारे नंगे होते थे। वो कहते थे जी हमने जिस कमाई से हम ये कपड़े पहने हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारा तवाफ भी कबूल नहीं करेंगे। ये डरते थे इस बात से। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह क्या करते थे कि बुतों को वसीला बनाते थे अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात करने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे जो बात बता रहे हैं जो हमें समझ आ जाए, अल्लाह करे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखो कुरान पाक में क्या कहा, वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ए नबी जब मेरा बंदा तुमसे पूछता है वइज़ा सालका इबादी, कि मेरा बंदा जब आपसे पूछता है, क्या पूछता है, मेरे बारे में पूछता है, तो उनको कह दो फइन्नी करीब, कि मैं उसके करीब हूं। उजीबु दावती दाई ज़ादान, कि जब भी वो मुझे पुकारता है मैं उसकी बात को सुनता हूं। अब प्रॉब्लम कहां होती है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो सिफात है ना उनको हम अपनी जो सिफात है उनके उस तरह से हम उनको सोचना शुरू हो जाते हैं। उस हमें लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपने अक्सर सुना होगा लोग कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है, तो अल्लाह ऐसे कैसे हो सकता है अल्लाह सुब्हानहू तआला आग में फेंक देगा। सुनते हैं ना ऐसे। अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें माँ जो है ना वो अपनी मोहब्बत से मजबूर है, और वो मजबूरी की वजह से वो ऐसे नहीं करेगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो किसी चीज से मजबूर नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो सिफात है वो उसकी क्या हिकमत है,
उसको समझने के लिए इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस सूरा में हम अल्लाह सुब्हानहू हम तौहीद को इस तरह से समझ सके जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम जो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे रिक्वायर करते हैं। आमीन सुम आमीन। दुआ करें कि इस सूरा के बाद हमें तौहीद, रसालत और डे ऑफ जजमेंट पे उस तरह से हमें इल्म आ जाए, उस तरह से हमारे दिल में उतर जाए जैसे ताकि हमारी आइंदा जिंदगी इंशाअल्लाह आसानियों के साथ गुजर जाए। अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सुम्मल्लज़ीना काफरू, फिर वो लोग जिन्होंने कुफर किया बी रब्बिहिम, अपने रब से। अब यहाँ पे देखिए पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला रब का लफ्ज लाए हैं। तो रब कौन होता है? जो मालिक है, खालिक है, मुदब्बिर है। जो मालिक है हमारा, हम सारे उसके बंदे हैं। बंदे कौन है? उसके गुलाम है। तो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करनी है कि या अल्लाह हमें अपनी ये गुलामी की समझ आ जाए, हमें अपने मालिक की समझ आ जाए, हम अपनी मर्जी के साथ अपनी जिंदगियों को कि मेरी मर्जी मैं इस तरह से करूं, मेरी मर्जी मैं उस मेरी मर्जी बोलते हुए एकदम से वो एक नारा जो होता है आजकल इतना फेमस सुनने को आता है, वो ज़हन में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अपनी जगह पहचाने, क्योंकि औरत का मुकाम बहुत बुलंद है। औरत वो है जिसके कदमों तले जन्नत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें समझ अता कर दे। आमीन सुम आमीन। सड़कों पे निकलने से, नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। हम तो अपने घर की शहजादियां हैं, हम तो अपने घर की मालिका हैं। आदमी तो चले जाते हैं जॉब पे, सारा दिन काम करते हैं, हम अपने घरों में जो चाहे करते हैं। मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ, आदमी जो होते हैं ना बड़े मासूम होते हैं ऑनेस्टली। अब अक्सर लोगों से वो बात इस लिहाज से मैं कहती हूँ कि औरत जो होती है ना, अगर हम चाहें तो हमारे घर जन्नत बन सकते हैं। इसलिए कि अगर मैं एग्जाम्पल आपको देके समझाती हूँ, मे बी दैट विल बी इजी फॉर यू। कि अक्सर होता है ना कि जैसे ससुराल में माँ बाप साथ होते हैं, और जिस घर में ये प्रॉब्लम होती है कि उनको साथ नहीं रखना, तो वो मैं अक्सर ये कहती हूँ कि देखो हमारे तो जो हस्बैंड है उनकी जन्नतें जाया ना करो। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम नहीं रखना चाहते ना, तो हम ऐसे तरीके से अपने हस्बैंड को बात बताएंगे। ये बताते हैं लोग कई दफा कि हस्बैंड वही सच समझना शुरू हो जाते हैं। जिन्होंने बस मैं आई होप अल्हम्दुलिल्लाह हम सब समझदार हैं, हम अच्छे से समझते हैं इस बात को। मैं इसको और डिटेल में बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगी उन तमाम खवातीन को कि जिनके ससुराल वाले सास ससुर बूढ़े हैं, साथ रहते हैं, बस ये समझ लें कि उनके हस्बैंड की जन्नतें हैं, जन्नत में जाने के दरवाजे हैं। उन पे रहम करें, और उन पे औरतें जो हम समझते हैं ना कि हमारा ये हक वो हक, हमारे बड़े हक हैं, हम हक लेते भी हैं और हमें देने भी हैं, राइट। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें वो सब समझने की तौफीक अता करे। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो जो सुम्मल्लज़ीना काफरू बिरब्बिहिम यअदिलून, तो वो अपने रब के बराबर ठहराते हैं। और ये जो बराबर ठहराना, ये जो मैंने आपको पहले इसके बारे में बताया कि क्या करते थे, अपने बुतों को अल्लाह सुब्हानहू तआला के बराबर लेके आते थे कि इनसे मांगेंगे। क्योंकि फिर डर क्या होता है कि जिससे आप मांग रहे हैं ना, देखें वो एक सजदा जिसे तू गराज समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। ये बिल्कुल वही बात है। दर दर की ठोकरें खाने से एक अल्लाह की वदानियत को समझ जाए, अल्लाह के एक पैगाम को समझ जाए ना, तो सारा कुछ समझ आ जाती है। देखिए इंसान जो है ना, हमने पहले पीछे पढ़ा था, इसी आयत को आप समझ के ये देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले हमें क्या बताया था। हजरत ईसा के बारे में आप याद करें, सूरत माइदा में हमने क्या पढ़ा था कि उनके हवारियों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इल्हाम कर दिया था उनको कि वो हजरत ईसा की अताअत करें और अल्लाह सुब्हानहू तआला को माने।
تو حضرت عیسیٰ کی اطاعت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی پیروی کرنا، یہ اللہ نے ان کے دل میں وحی کی تھی نا، الہام کیا تھا، جس کو میں نے ایکسپلین کیا تھا۔ اب دیکھیے اگر ہماری کوئی ضرورت ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں نا، وہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے، وہ اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ مجھے اس کی مدد کرنی ہے۔ اب دیکھیے وہ پیسے جو اس نے بڑی محنت سے جوڑے ہوتے ہیں، پیسے جوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اب بڑے شوق سے بندہ پیسے اپنے جوڑتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے، وہ سارے پیسے اٹھا کے اگر کسی کو دے دیتے ہیں تو کیسے دیتے ہیں؟ کین یو امیجن؟ بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ ڈالتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسی لیے دعا کیا کریں کہ یا رب العالمین، ہم جو دعا کرتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ سبحانہ تعالیٰ میری مدد کر۔ تو کس لیے کہ میں ذکر جو کر رہی ہوں اس کے لیے بھی، میں جو عبادت کر رہی ہوں اس کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کریں گے نا تو سارا کام ہو جائے گا۔ انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم انسان کے دیکھیں جو ہماری ہیلپ کرتا ہے نا، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اصل کون ہے؟ جس نے اس انسان، دیکھیں اس پہ بھی اتنا کرم ہو گیا کہ اس نے ہیلپ کی، ڈیفینیٹلی اس کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور جس نے دعا کی اس کی دعا قبول ہوئی، تو کہاں سے مدد چلتی ہوئی کہاں تک آگے، الحمدللہ۔ اور آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں هو الذی، وہی ہے الذی جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، من الطین، مٹی سے، ثم پھر قضا، اس نے مقرر کی، آجلن، ایک مدت۔ اب دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا کہ اللہ پیدا کیا، کس سے؟ مٹی سے پیدا کیا ہمیں سب کو۔ دیکھیے ہمارا جو جسم ہے وہ مٹی سے بنا ہوا ہے، یہ آپ سب کو بھی پتا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تھا، فرشتوں کو کہا تھا سجدہ کرے، تو شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں اس کو کیوں سجدہ کروں، یہ مٹی سے بنا، میں اسموک لیس فائر سے جو بنا ہوا تھا، آگ سے بنا ہو، تو میں اس سے افضل ہوں۔ تو ہماری روح جو ہے وہ نوری ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ دیکھیے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا، جب ہم نے پڑھا تھا وعدہ الست کے بارے میں، یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 3 کا ورڈ آیا ہے اس کے بارے میں، کہ ہمارا روح کیسے ہے اور ہمارا جسم کیسے ہے، اس کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت حدیث بھی ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کہ ایک سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ وعدہ الست کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں کہ ہم جب روحوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، تو یہ روحیں کون سی تھی؟ ہماری جو روح تھی نا، یہ دنیا بننے سے پہلے 50,000 سال پہلے روحیں بن چکی تھی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ الست لیا تھا، اس کے بعد ان کو سلا دیا گیا تھا، کولڈ سٹوریج میں سو گئے تھے، ساری روحیں موجود تھی۔ ہم اگر دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آخر تک ہم سارے ایک ہی ایج کے ہیں، اکٹھے پیدا ہوئے تھے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن اکٹھے اٹھیں گے۔ لیکن کس وقت ان کو دنیا میں آجلن مقرر ہے وقت سب کا، کہ کس نے دنیا میں کب آنا ہے اور کس نے واپس کب جانا ہے۔ اب وہ جو روحیں تھی نا، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں ایک ماں کی کوکھ میں جب ہم آتے ہیں، اس کے بعد جو 120 دن کے بعد فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، تو اب یہ والی حدیث میں آپ کو سناتی ہوں، اور پھر انشاءاللہ وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن سعید مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جو فرشتہ رحم پر مقرر کیا جاتا ہے، وہ نطفے کو اپنی ہتھیلی میں رکھ کر کہتا ہے کہ اے رب، اس کی تخلیق کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی تخلیق کی جائے گی، تو پھر وہ کہتا ہے کہ اے رب، اس کا رزق کتنا ہے۔ اب دیکھیے کہ رزق اس وقت جب بچہ ابھی وہ نطفہ ہے، اس وقت لکھا جاتا ہے، تو اس کا رزق کتنا ہے، اس کا نشان کیا ہوگا، اس کی موت کب آئے گی، اور یہ سب چیزیں پوچھنے کے بعد وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوح محفوظ میں دیکھو۔ وہ لوح محفوظ میں دیکھتا ہے تو اس میں اس کا رزق، اس کا نشان، اس کی موت اور اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو جس جگہ اسے دفن کیا جائے گا، وہ فرشتہ وہاں سے مٹی لیتا ہے،
जिस जगह दफन किया जाता है वहां से मिट्टी लेता है और उसको उस नुत्फे में मिलाकर गूंथता है। और इसी तरह से देखिए सूरह ताहा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया और उसी में तुमको लौटाया जाएगा और उसी से तुम्हें दोबारा निकाला जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि हर मौलूद पर उसकी कब्र की मिट्टी छिड़की जाती है। अब देखिए वो जो वादा लस्लिया था, हमारी रूहें थी ना, ये जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम रूह फूंकते हैं तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा ना वनुफिखा फीही मिन रूहिही, तो अल्लाह वो रूह जो थी ना ये वो वाली रूह थी, फीही मिन रूहिही अपनी रूह फूंकी। तो अक्सर लोगों को यहाँ पे ये गलती होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी रूह उसमें फूंकते हैं, ये वो रूह फूंकी मतलब वो जो वहां पे कोल्ड स्टोरेज में पड़ी हुई थी वहां से हमारी माँ के अंदर वो रूह आ जाती है। इसीलिए हमारी रूह जो है ना वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आती है, उसके अंदर ये बिल्ट इन है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौहीद, वादा रस बिल्ट इन है। इसीलिए जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात सुनते हैं हमारी रूह को अच्छा लगता है, हमारे दिल को अच्छा लगता है, हमें सुकून मिलता है। ये हमारी जिस्म जो है ना ये दुनियावी, ये मिट्टी से बना हुआ है, इसीलिए मिट्टी की तरफ खींचता है, इसीलिए दुनिया की चीजों की तरफ खींचता है और हमारी रूह जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ खींचती है। तो आई होप इंशाल्लाह ये बात भी हमें समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो कहा कि मिट्टी से पैदा किया और आजलन, और वो जिंदगी जिस रात को कहते हैं ना जो रात हमारी कब्र में है वो बाहर नहीं आ सकती है, जो बाहर है वो कब्र में नहीं आ सकती। तो मौत का दिन मुकर्रर किया हुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, व आजलुन मुसम्मन, और एक और मुद्दत मुकर्रर की। ये कौन सी मुद्दत है? मौत से क़यामत तक का दिन। इसका और किसी को नहीं पता क़यामत कब आएगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं कि क़यामत कब आएगी। तो ये वो दिन है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आजलन मुसम्मा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क़यामत तक का दिन भी मुकर्रर कर दिया। इंदहु, किसके पास? अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास इसका है। सुम्मा, फिर अंतुम तमतरून, और तुम फिर भी क्या शक करते हो। अल्लाह अकबर। फिर आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर कहते हैं वहुवल्लाहु, और वही तो है अल्लाह फिस समावाति वल अर्द, जो आसमानों और जमीन में है। अल्लाह कौन है? जो सारी कायनात उसकी है। तो अल्लाह से ही मांगेंगे ना। फिर जब शिर्क करते हैं हम समझते हैं कि फलां जो इंसान है वो जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगेगा तो दुआ कबूल हो जाएगी, मेरी नहीं होगी। हाँ, दुआ जिंदा लोगों से जरूर कर सकते हैं, आप हर एक को कहें, अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी की भी दुआ कबूल कर लेते हैं दुआ करने के लिए। लेकिन जो चले गए ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास, वो हमारे लिए दुआ नहीं कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट अल्लाह करे हम सबको अच्छे से समझ आ जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वही तो है अल्लाह फिर समावाति वल अर्द, जो आसमानों में है और जमीन में है। यअलमु, वो जानता है सिर्रकुम, पोशीदा तुम्हारा, व जहरकुम, और तुम्हारा जाहिर। व यअलमु, और वो जानता है मा तक्सिबून, जो तुम अमल करते हो। देखिए ये एक बात भी अगर हमें समझ आ जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो तुम जाहिर करते हो, जो तुम छुपाते हो। देखिए इंसान दुनिया से, लोगों से छुपाएगा ना। एक होता है हमारी जात के साथ, जब हम कोई अल्लाह ना करे, जब हम कोई गुनाह की चीज करते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा हमें किसी ने देखा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला देख रहे हैं। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना कि वो सब जानता है। और जब इसीलिए हम जब पढ़ते हैं ना अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतु आमदन औ खतान सिरन औ अलानियतन व अतूबु इलैह, कि या अल्लाह जो गुनाह किए, ये मांगा करे दुआ, ये कंप्लीट दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो गुनाह हमने छुप के किए, एलानिया किए, जाहिरी किए, बातिन किए, या अल्लाह सारे गुनाह से हमें माफ कर देना। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वो अपने इल्म की अब बात ला रहे हैं कि अल्लाह का इल्म वैसा है कि जो तुम छुप के भी कोई चीज करते हो, जो एलानिया करते हो, वो सब अल्लाह सुब्हानहू तआला को मालूम है। अल्लाह से कुछ नहीं छुपा हुआ। यअलमु, वो जानता है, मा तक्सिबून, जो तुम कमाते हो।
यह कमाई देखिए कौन सी है, एक तो वो कमाई है जो हम कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, हमने हलाल कमाया कि हराम कमाया, हमने लोगों को धोखा देने के लिए कि जी हम ठीक करें, लेकिन कमाई कैसी है अल्लाह जानता है, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते ना। और दूसरी बात हमारे अमल कैसे कमाए, क्योंकि आखिरत में जो कमाई है वो तो हमारे अमल है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहती है मैं तुम्हारे अमल को भी जानता हूँ। वमा तातीहिम, और नहीं आती उनके पास, मिन आयातिन, कोई निशानी, मिन आयाती रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, इल्ला कानू अन्हा मोरदीन, कि वो उससे एराज करते हैं, उससे मुंह छुपाते हैं, मीन्स के उसको इनकार कर देते हैं। एराज करना यानी मुंह मोड़ लेते हैं। अब यहाँ पे आयात को देखिए कि आयात कौन कौन सी हैं। एक तो वो आयात हैं जैसे अब कुरान पाक है जो हम पढ़ते हैं तो आयात पढ़ते हैं ना। एक तो ये है कि जब कुरान की कोई आयात नाजिल होती थी, पहले तो ये था कि वो मुआवजे मांगते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अगर उनको ये होता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ की कि मांगते क्या थे कि अच्छा आप सफा पहाड़ी है ना, आप इसको सोने का बना दे, क्योंकि उनको ये था कि देखिए जो पहले नबी आए थे, हजरत ईसा थे, हजरत मूसा थे, उनके पास ज़ाहिरी मौजे थे, आप भी हमें करके दिखाएं। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ की और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैं तुम्हारी दुआ कबूल कर लूंगा, लेकिन अगर पिछली उम्मतों के साथ भी ये हुआ ना, अगर मौजा देखने के बावजूद भी ये इस्लाम ना लेके आए तो फिर मैं इनको ऐसा अजाब दूंगा जो आज तक जमीन पे किसी को अजाब ऐसा ना मिला होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप ऐसा नहीं करें, मैं अपनी तरह से इनको समझाता रहूंगा, मैं अपनी तरह से दावत देता रहूंगा। जब मुशरिकीन मक्का को ये पता चल गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मौजा नहीं दिखा रहे, वो ये कहते हैं कि मौजा दिखाने का हक अल्लाह सुब्हानहू तआला का है, वो दिखाएंगे तो देख लेंगे, वो नहीं दिखाएंगे। और सबसे बड़ा मौजा कुरान पाक है, लेकिन उसकी तरफ वो नहीं आते थे। अब उनको इस बात का एहसास पता चल गया था, तो वो जानबूझ के ना लोगों में ये बात फैला देते थे कि देखो इनको कहो कि कोई मौजा दिखाए, ये क्योंकि मौजा कोई दिखा नहीं सकते तो ये एक ऐसी चीज है जो उनके अगेंस्ट जाएगी, तो इसलिए वो उनको तंग करते थे। ये आयत फिर नाज़िल हुई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर मात आती और नहीं आती उनके पास कोई निशानी, मिन आयाति रब्बी, उनके रब की तरफ से, इल्ला कानू अन्हा मुरिदीन, तो वो उसे एराज कर लेते हैं। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया था ना उनको जो शक्के कमर का वाकया था, फिर भी वो नहीं माने थे क्योंकि उनको नहीं मानना था, ये एक बहाना होता है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा मौजा क्या था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे, मेराज का वाकया जब आके बताया था तब उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि देखो देखो अब ये ऐसी बातें कर रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे बताएंगे इसके बारे में कि फकत पस तहकीक कज़्ज़बू, उन्होंने झुटलाया बिल हक, हक को, लम्मा जाहुम, जब आया उनके पास, फसौफा, पस अन करीब, यतीहिम, आएंगी उनके पास, अंबाउ, खबरें, कौन सी खबरें आएंगी, उन पे अजाब की खबरें आएंगी, मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, जिसका वो मजाक उड़ाते थे। मैंने आपको बताया ना जैसे जब मेराज का वाकया हुआ था तब मजाक उड़ाते थे कि देखो जी ये कैसी बात है, ये कैसी कैसी बातें करते हैं। और जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपने घर से आ रहे थे, अभी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मिले थे, तो रास्ते में अबू जहल मिला तो उसने कहा कि अबू बकर अगर तुम्हें कोई ये कहे कि वो रात को आसमान दुनिया से होके आया तो क्या तुम बिलीव करोगे? उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं बिलीव करूंगा। उन्होंने कहा तुम्हारा दोस्त ऐसी बातें कर रहा, उन्होंने बड़ी खुशी हुई कि ये तो मैं इसको कहूंगा तो अब तो ये नहीं मानेगा तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा था कि अगर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये वो कह रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक होगा। तो इस तरह से ये मजाक उड़ाते थे और उनका ये एक उनको कमजोरी उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाने की कोशिश की कि शायद इस तरह से लोगों को उन इस्लाम के रास्ते से हटा देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज, क्योंकि उस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था, जो कुछ ऐसी कोई क्वेश्चंस होते थे उसी वक्त, इसीलिए कहते थे ज्यादा क्वेश्चंस ना पूछो क्योंकि उनका जवाब आ जाएगा। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर किसी के बारे में तफसील से नहीं बता रहे तो उसमें रहमत है तुम्हारे लिए आसानियां हैं। तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे उनका खोल खोल के बयान कर रहे हैं
کہ किस तरह से वो मजाक उड़ाते थे। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अलम यरो, क्या नहीं देखा उन्होंने कम अहलकना कि कितनी हलाकी हमने मिन कबलिहिम उनसे पहले मिन करनिन कौमें मक्कन्नाहुम कि कुदरत दी थी हमने इन्हें फिल अर्दी जमीन में मालम कि नहीं नुमक्किन लकुम कि कुदरत दी तुम्हें व अरसलना। और अब यहाँ पे पहले आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे क्या बात बता रहे हैं कि जो मुशरिकीन मक्का थे उनको ये जवाब दिया जा रहा है कि देखो तुम किस उसमें कर रहे हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग कर रहे हो, इस्लाम को नहीं मान रहे हो, तुम्हें ये लग रहा है कि तुम बड़े दुनिया में तुम्हें बड़ी तरक्की मिली हुई है, तुम्हारे पास बड़ा सब कुछ है। तो तुमसे पहली कौमें, तुम तो जाते हो क्योंकि ये शाम में जाते थे तिजारत के लिए ना, तो रास्ते से गुजरती हो जहां से तुम ऐसी बस्तियां देखती हो जो अजाब से उल्टी पड़ गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं कि वो कौमें जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत अरूज दिया था और उसके बाद उन्होंने कौम आद, कौम समूद, कौम ये सारी जो कुरान में आते हैं जिनके किस्से आते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे किस्से सुनाने के लिए, कहानियां सुनाने के लिए कि सुन के सो जाओ, इसलिए नहीं वो किस्से कहानियां बताए, वो इसीलिए बताए हैं कि उनसे तुम सबक लो। अब देखिए कुरान जब नाजिल हो रहा था, कुरान पाक जब नाजिल हो रहा था तो उस वक्त मुसलमान जो थे अभी नए नए, जैसे मुसलमान ये कौन से जमाने की बात हो रही है ना, मक्का में थे जब अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मदीना में नहीं आए थे, मक्का के जमाने की बात हो रही है, तो अभी कुरान नाजिल हो रहा था। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुसलमानों को, क्योंकि रहती दुनिया तक अब हम इसी कुरान को गाइडेंस लेंगे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे कि देखो वो कौमें जिन्होंने ऐसे किया था, अल्लाह की आयात का इनकार किया था, उनका क्या हाल हुआ था। और हमेशा यही होता है कि लोग जब जब ज्यादा आ जाता है, जब अल्लाह का फजल करम ज्यादा हो जाता है, तो वो समझते हैं कि ये तो हमने मेहनत की है, हमारी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना हमारे पास पैसे हैं, या हमारा इतनी शोहरत है, या इतना नाम है, या इतना सारा कुछ है। देखिए जब भी मैं कभी ऐसी बात करती हूँ ना, घर बड़े, गाड़ियां बड़ी, घर सारे मुल्कों में, इसका ये मतलब नहीं कि हर अल्लाह ना करे कि गलत तरीके से बनाए हुए हैं। मैं सिर्फ उन लोगों की बात करती हूँ जिन्होंने, जो ये समझते हैं कि अगर रिश्वत लेके गलत काम करके हम ऐसा सब कुछ कर लेंगे, अल्लाह की पकड़ आती है। अब देखिए इस सूरह में आपको ये समझ आ जाएगी कि असल जो जगह है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इंसान, हम एक दूसरे की मदद करते हैं ना, वसीला बनते हैं एक दूसरे का, लेकिन उसकी असल कहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं, अगर तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला को धोखा नहीं दे सकते हो, तुम वो जाहिर भी जानते हैं, वो छुपी चीजें भी जानते हैं। तुम किसी का हक मार के अगर कोई चीज ले लोगे, फॉर एग्जाम्पल विरासत है, विरासत में अगर तुम अपनी बहनों का हिस्सा ले लो, अगर तुम ये समझो कि उनको तो पता ही नहीं है, अक्सर आप देखें कि इतनी बड़ी बात है कुरान में बैना तौर पे विरासत के सारे कामात आगे, फिर भी हमें नहीं पता होता। फिर भी जब विरासत की तकसीम होती है तो हम कहते हैं कि नहीं, बहनों का तो हिस्सा जी हमने जहेज दे दिया था जी, एक तो वो मुसीबत, इंशाल्लाह उसके बारे में भी जहाँ पे टॉपिक आएगा बात करूंगी कि वो दे दिया था तो उनको विरासत में हिस्सा नहीं देंगे। या फिर किसी को बेवकूफ बना के बंदा समझता कि देखो वो बेवकूफ था, मैंने इतने पैसे उससे बना लिए, उसको पता नहीं चला। अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पैसों से बरकत उठा लेता है, देखने में लगता है अब वल्लाही ऐसा होगा कि आपके बैंक में इतने पैसे हैं, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया, उन चीजों से बरकत खत्म उठ जाती है। वो चीजें आपको नजर आने में लगेंगी लेकिन वो फायदे नहीं देंगी। वो जिस जगह पे आप इस्तेमाल करेंगे उस जगह का सुकून उठ जाता है। देखिए एक इंसान की सबसे बड़ी तकलीफ भी ये होती है कि दिन रात मेहनत करता है और पैसे जमा करता है, और अगर वो हलाल के नहीं है ना तो वो अपनी दिन रात करेगा, लेकिन जो पैसे जिनके ऊपर लगेंगे ना वहां से उसको चैन नहीं मिलेगा, औलाद की तरफ से चैन नहीं मिलेगा, उसको बीवी की तरफ से चैन नहीं मिलेगा, घर में से सुकून उठ जाएगा। हमें
अक्सर अब देखिए अगली आयत में इतनी लंबी ये जो तमहीद बांध रही हूं ना, उसका मकसद क्या है अगली आयत में इंशाल्लाह आपको समझ आएगी, और इंशाल्लाह फिर वहां पे दोबारा से बात करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो करम किए ना उन कौमों पे जो अपना फजल किया, जो अपनी नेमतें अता की, उसका जिक्र करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, व अरसलना, और भेजा हमने अस्समा आसमान को अलैहिम उन पर मिदरारा बरसता हुआ, बहुत बरसता हुआ। मिदरारा कहते बारिश, जैसे बेसिकली ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतें, अल्लाह सुब्हानहू तआला के करम उन पे बरस रहे थे। और जब बारिशें ज्यादा होती हैं तो फसलें ज्यादा अच्छी होती हैं, फसलें ज्यादा अच्छी होती हैं तो बेसिकली जो उनके जानवर हैं वो ज्यादा अच्छा खाते हैं, फिर वो दूध अच्छा देते हैं, फिर फसलें अच्छी होंगी तो फिर खुशहाली हो जाती है, फिर वो सारी चीजें हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वजअलना, और बनाई हमने अनहारा नहरें तजरी मिन तहतिहिम, जो बहती थी उनके नीचे। अब देखिए आपने वो वाकया पढ़ा था ना कि कई आप अभी भी देखें कितने लोगों के घर ऐसे होते हैं जो पानी के ऊपर होते हैं, नहरें बह रही होती हैं, खूबसूरत एक जन्नत का, जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, जन्नत की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, तजरी मिन तहतिहा अल अनहार, के जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी, ऐसा हाल होगा। तो काइंड ऑफ वही नक्शा जो होता है वो दुनिया में इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला दिखाता है, ये उसका करम होता है। और ये आजमाइश भी होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये सब कुछ दिया उनको, फअहलकनाहुम, तो फिर हलाक कर दिया हमने। क्यों हलाक किया? क्योंकि बिजुनूबिहिम, उनके गुनाहों की वजह से। आप देखिए कभी ऐसा होता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम, आपको लगता है कि हर चीज मेरी ठीक जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, कारोबार भी ठीक है, घर भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है, हर चीज मेरी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह लाइन पे जा रही है, सुकून भी है इधर। जब कभी ऐसा हो ना कि चीजें उल्टी पड़ना शुरू हो जाए तो फौरन अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस्तगफार करना शुरू हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफी मांग ले। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला तौबा कबूल करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला नियतें जानते हैं। फौरन देखें कि कहाँ पे रुक के देखें कि मेरे से गलती किधर हो गई, कहाँ पे मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी करना शुरू होगी। और क्योंकि कई दफा होता है हमें पता नहीं होता, एहसास नहीं होता, लेकिन ये साइन है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं ना। ये तो देखो कौमों की बात हो रही है ना, हम उस कौम को अपने घर में लेके कुरान, तो इसी तरह से ना जैसे मेरे पे फॉर एग्जांपल नाजिल हो रहा है, तो मुझे इससे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या बता रहे हैं, मेरी कौम तो मेरा घर है, तो मैं अपने घर में देखूंगी कि ऐसी सिचुएशन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के इतने करम है, तो फिर एकदम से चीजें उल्टी क्यों पड़ना शुरू हो गई हैं। हम पता है जान छुड़ा लेते हैं, हम कहते हैं कि चलो जी कोई बात नहीं, अल्लाह का इम्तिहान आया है तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो मेरी किस्मत में लिखा हुआ था, ये मेरी तकदीर में लिखा हुआ था, इसलिए हो गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे जो चीज कह रहे हैं ना, हमें देखिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने एडमिट करने की भी जरूरत नहीं है। यूजुअली हमें शर्मिंदगी होती है, इसीलिए फिर हम पर्दा डालते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, उस पर बहस करना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने एक सजदा, या रब्बुल आलमीन कहाँ गलती हो गई, नहीं पता चला, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे माफ कर दें, मेरे घर में ये जो सिचुएशन आ रही है मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरे से गलती होगी, मुझे माफ करे और मुझे गाइड करे। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, या अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे बता कि मैं क्या करूं। आप बिलीव करें अल्लाह सुब्हानहू तआला तो कहते हैं ना कि मेरी तरफ आओ, तुम चल के आओगे, मैं दौड़ के आऊंगा, तुम दौड़ के आओगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें थाम लेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला पकड़ लेते हैं, थाम लेते, बंदे को गिरने नहीं देते हैं अगर बंदा इसलिए तैयार होता है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला यही बात बता रहे हैं कि उनके गुनाहों की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको हलाक किया। और फिर क्या किया, वह अनशाना, और उठाई हमने मिन बादिहिम, उसके बाद करनन कौमे आखरीन, दूसरी, कि कुछ और लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ले। अल्लाह सुब्हानहू तआला को क्या जरूरत है, उनको कोई जरूरत नहीं हमारी इबादत की, ये हमारी अपनी हमारी होती है कि हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करनी है, क्योंकि हमने जन्नत भी तो लेनी है ना। ये दुनिया अमल की जगह है,
ये दुनिया में इम्तिहान आएंगे। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दुनिया को एक बहुत थोड़ा वक्त है, 50, 60 साल, 80, 90 साल कुछ भी नहीं है। आप कभी अपने बुजुर्गों से पूछ के देखिए। मैं अपने ससुर से अक्सर ये बात पूछती थी कि अब्बू आपकी इतनी साल गुजरे तो आपको कैसे, आप तो हमें लगता है जैसे उनको देखी तो बहुत बड़ी उम्र है, लेकिन आप कभी उनसे पूछ के देखिए, उनको वो कहती है कि मुझे ये लगता है कि अभी कल की बात थी मेरी शादी हुई, अभी कल की बात थी मैं स्कूल जाता था, फिर मेरी शादी हुई, बच्चे छोटे छोटे थे, कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। और आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, एक रील की तरह 1 मिनट के अंदर भी नहीं, 1 मिनट से भी कम, आधे मिनट से भी कम में वो पूरी रील खत्म हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे हमें जो चीज बताते हैं, इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह से दुआ करें कि हम इस बात की समझ आ जाए। हम दुनिया के पीछे भाग भाग के थक जाते हैं, भाग भाग के हमारे पास इतने बहाने होते हैं, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, वो किधर लगाते हैं। कभी आपने देखा है जब हम टीवी के आगे बैठते हैं, एक ड्रामा 1 घंटे का होता है, हमें पता ही नहीं होता वो कहाँ गुजर गया, बैठे बैठे ड्रामा देख रहे हैं। अब मूवी देखना शुरू करे, अल्लाह का करोड़ शुक्र है मूवी तो नहीं देखते, लेकिन जिस जमाने में देखते थे 3 घंटे की मूवी होती थी, कोई पता चलता था 3 घंटे बैठे। फोन करने लगते हैं क्योंकि एक तो फ्री फोन आ गए हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला व्हाट्सएप ने पाकिस्तान, इंडिया, जहां जहां हमारे लवंस है सारी जगहों पे फ्री फोन आ गए, तो अब हमें छोड़ना ही नहीं है, इतने लंबे लंबे फोन करेंगे। और आज ही मेरी मेरी बहन है पाकिस्तान में, उनसे डिस्कस मैं कर रही थी, वो बेसिकली नाराज हो रही थी कि लंबी बात नहीं करती। तो आई सेड कि आपने जो मुझे कहना था मुझे पता चल गया, इसके बाद मैंने सबक याद करना है अपना, मैंने ये करना है। तो वो नाराज हो रही थी कि दुख सुख नहीं सुनते हो, ऐसे दुख सुख नहीं होती, चुगलियां होती है, ज्यादा लंबी बात नहीं करनी क्योंकि फ्री जो फोन है। तो फिर हमने लंबे लंबे, उस रिश्तेदार ने क्या किया, फलां रिश्तेदार ने क्या, अच्छा उसकी शादी हो गई थी, अच्छा उसकी ठीक हो गई, उसका बच्चा हो गया, उसने छोड़ दिया, उसने ले लिया, क्या क्या बातें करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की जब बात आती है ना, तो हमारे पास वक्त नहीं है। लो अब हमारे पास क्लास अटेंड करे, नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं, अब एक क्लास ले रही हूँ तो दूसरी में नहीं, मेरे से तो ये होता ही नहीं है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको तौफीक अता करे कि हम अच्छे अच्छे काम करें, अल्लाह को राजी करने वाले बन जाए। देखिए कुरान पाक बहुत आसान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में कहा, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र हल मिन मुद्दकिर, कि मैंने कुरान, वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, ये मशीनरी उसने बनाई, वो कह रहे हैं कि मैंने, अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने ये कुरान आसान बनाया है, कोई नसीहत लेने वाला। और हम बार बार एक ही बात कहेंगे कि मुझे तो नहीं समझ आती, ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है ये समझने। शैतान ने हम पागल बना के रख दिए, हमें वो बार बार ये चीज सिखाता है कि ये नहीं समझ आ सकती। देखिए हमारी अपनी जुबान में कुरान है। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी बता दूं, इंशाल्लाह रमजान आने वाला है, तैयारियां पहले से हमने शुरू कर दी हैं, एक्साइटमेंट इतनी है। अभी कल मैं छोटी सी बच्ची से बात कर रही थी, शी सेड आई एम सो मच एक्साइटेड कि रमजान आ रहा है। सेड वाह व्हाई, आप रोजा रखोगे? छोटी है, उसने रोजा नहीं रखना था। शी सेड नहीं, ईद आएगी। तो ऐसे ओह या ईद भी आएगी। तो इंशाल्लाह रमजान आएगा, हम सारे उसकी तैयारी करें। दिस रमजान मैं कोशिश कर रही हूँ इंशाल्लाह कि उर्दू में एक पारा हम रोज पढ़ेंगे, ठीक है, एवरी डे। एक टाइम में सेट कर दूंगी, उस वक्त मैं इंशाल्लाह आप फेसबुक में एंड यूट्यूब में आप लोगों को पूरा पारा जो है वो उर्दू में कोशिश करूंगी कि 1 घंटे के अंदर वो इंशाल्लाह खत्म हो जाए। मेरी और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस किसी के हाथ में सेल फोन है ना, उस तक ये कुरान पहुंच जाए हमारी अपनी जुबान में। क़यामत के दिन हम ये हुज्जत खत्म कर देंगे, या रब्बुल आलमीन हमने पूरी कोशिश की थी और हमने आपका पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया था। और आप सब ने ये कोशिश करनी है कि आपके जितने लव वंस हैं आपने उनको वो पहुंचाना है, आपने उनको फॉरवर्ड करना है, व्हाट्सएप पे भेज दें, आप अपने फेसबुक से भेज दें, जिस तरह भी भेजना है।
تاکہ ہر کوئی اپنی زبان میں اردو میں ایک دفعہ اس رمضان میں پورا قرآن پاک سن لیں. اس کے بعد انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سینے کھول دے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ذہن بھی کھول دیں گے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ بتا دیں گے جس پہ چل کے ہم نے کامیابیاں انشاءاللہ لینی ہے. ابھی میں وقت کا دیکھ لوں, وقت تو ختم ہو گیا. یہاں پہ انشاءاللہ ہم اپنا کلاس ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, آگے بھی بہت خوبصورت آیات ہیں. یہ پوری سورہ جو ہے یہ اسی ٹاپک پہ ہوگی انشاءاللہ, اور ہم دیکھیں گے کہ اس سورہ کا ختم ہونے تک ہمارے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے نا, ایک ہوتا ہے ہم منہ سے بولتے ہیں, ہمیں پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ الحمدللہ, ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحمان ہے, رحیم ہے, ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو 99 صفات ہیں وہ ہمیں سب کو پتہ ہے. لیکن ایک ہوتا ہے نا جو دل میں اتر جاتے ہیں, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا یتدبرون, تم تدبر کیوں نہیں, سوچتے کیوں نہیں ہو کہ اللہ کون ہے. پھر اگر وہ رب ہے نا, اس کو جب تم رب مانتے ہو تو پھر رب کی کیوں نہیں مانتے ہو, پھر تم اپنی مرضیاں کیوں کرتے ہو, پھر تمہیں کیوں مشکل لگتا ہے, کیونکہ مشکل ہے ہی نہیں ہے. مشکل وہی ہوگا نا جب ہم کسی برائی کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اس کا چسکا ہوتا ہے, اور کیونکہ برائیوں کو چھوڑنے میں محنت لگتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جیسے ہم بچے کو کینڈی دیتے ہیں نا, بیٹا اگر تم یہ کام کرو گے تو پھر میں تمہیں یہ چاکلیٹ دوں گی یا میں تمہیں یہ سرپرائز دوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسے کہتے ہیں, دیکھو جنتیں ملیں گی, پھر وہاں پہ یہ چیزیں ملیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ غور کریں کہ جتنی چیزوں سے منع کرتے ہیں نا, وہ کون سی چیزیں ہیں جو دوسروں کو تکلیف دینے والی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اس کے بندوں کو ہم تکلیف دیں. کوئی بھی دیکھیں, آپ غلط کام کریں گے, فار ایگزامپل آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا چغلی لگا رہے ہیں, تو آپ تو خود ہی لگا رہے ہیں, اپنے منہ سے اپنے بات کی ہے, لیکن آپ کسی نہ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں. آپ کسی کا حق ماریں گے تو کسی کا حق ماریں گے, وہ تکلیف میں آئے گا. اگر آپ کوئی بھی دیکھیں, ظلم ہے نا, کوئی بھی آپ غلط کام کرے, اللہ نہ کرے تو وہ ظلم ہوگا, اس سے کسی نہ کسی بندے کو تکلیف ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے نہیں ہے, وہ یہ کہتے کہ میرے بندوں کو تکلیف نہ دو. اگر تم اس حد کے اندر آ جاؤ گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے, تو ساری سوسائٹی امن میں آ جائے گی. یہ امن کی کتاب ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں ہے. ہم کتنے نصیب والے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو اپنے ہاتھ سے دیکھ سکتے ہیں, چھو سکتے ہیں, آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں. یہ میرے رب کا کلام ہے. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ قرآن جو تھا, یہ ایسے کتاب کی صورت میں نہیں تھا. لوگوں نے اس کو ڈفرینٹ آیات آتی تھی, کبھی جیسے ہوتا ہے درختوں کی چھال ہوتی ہے, اس پہ لکھا ہوتا تھا, پتھروں پہ لکھا ہوتا تھا. یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں کتاب کی شکل میں ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے. اتنی بڑی سعادت ہمارے پاس ہے. اپنے اس کو کھولا کریں, اپنے بچوں کو بھی بتائیں. دیکھیں جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوتا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, لیکن جب ہمیں احساس ہو گیا تو پھر کیا کریں, پھر دعا کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے محبت کرنے والا, اللہ کی قرآن سے محبت کریں گے تو اللہ کے حکموں سے محبت کریں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے نا, جنہوں نے ہمیں یہ راستہ بتایا, یہ ہدایت دی. انشاءاللہ تھی تو ہری شاخ تھی. اور آپ کو پتہ ہے ہم نے وہ حدیث بھی پڑھی اور ہم نے قرآن میں بھی پڑھا تھا, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اللہ کی ہے, اور تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے. اے انسان تجھے نہیں پتا کہ ان کی عبادت کیسی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ کیونکہ وہ ہری شاخ تھی, تو یہ جب تک یہ ہری رہے گی, ان کی تسبیح کی وجہ سے ان قبر والوں پہ عذاب کم ہوگا, عذاب ختم ہو جائے گا. تو دیکھیے یہ اس سے پھر دلیل ملتی ہے کہ جو قبر پہ گھاس ہوتی ہے جیسے, یا پھر آپ کوئی پھول جیسے جو ڈالتے, جو فریش پھول ہوتے ہیں, کہ وہ ان کی تسبیح ہوتی ہے, تو اس سے یہ دلیل لیتے ہیں, تو اس لیے قبر پہ وہ پھول ڈالتے ہیں, یا اس طرح سے ہوتا ہے. تو I just wanted to share with you all
कि इस तरह से जब हम पढ़ते हैं तो फिर और भी अच्छा लगता है जब हमें समझ आ जाती है। तो आइए अब हम देखते हैं सूरत अल माइदा आयत नंबर 71 में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं। थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे, कि अहले किताब के बारे में पढ़ रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि क्या इन्होंने, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की फेवरेट कौम थी, जैसे आज हम कहते हैं कि मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू तआला की फेवरेट कौम है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि इनमें क्या क्या खामियां थी, कि उन्होंने क्या क्या गुनाह किए थे, किस वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला नाराज होते थे, और फिर कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये माफ़ी मांगते थे, तौबा करते थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ करते थे और फिर वो गुनाह करते थे। और लास्ट प्रोग्राम में हमने देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अगर ये अपने फैसले अल्लाह के अहकामात के मुताबिक नहीं करते तो ये फासिक हैं, ये काफिर हैं, ये जालिम हैं। कोई भी हम में से कोई भी अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक फैसले नहीं करता, अब जिंदगी के फैसले तो सुबह से शाम तक हम करते हैं ना, तो हमें ये देखना होगा कि क्या हमारे फैसले अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला एक और चीज बताते हैं कि वह हासिबू, और उन्होंने समझा, वो जो सारे गुनाह करे थे, सारी उन्होंने गलत चीजें की और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको माफ कर दिया, तो उन्होंने क्या समझा, वह हासिबू, और उन्होंने समझा अल्लाह के ना तकूना होगा फितनातुन, कोई फितना, कि कोई सजा नहीं होगी, कोई पकड़ नहीं होगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ नहीं करना। फामू, तो वो अंधे हो गए, मीन्स कि उनका दिल का नूर खत्म हो गया। वह सम्मू, और वो बहरे हो गए, वो हक सुनने से बहरे हो गए। सुम्मा ताबा, फिर मेहरबान हुआ अल्लाह अलैहिम, उन पर, सुम्मा, फिर अमू, वो अंधे हो गए, वह सम्मू, और वो बहरे हो गए, कसीर मिनहुम, उनमें से बहुत ज्यादा। देखिए हर एक की बात नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि वो सारे के सारे ऐसे हो गए, कसीर का लफ्ज आता है। देखिए आज भी आप देखिए कि अगर हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान ऐसे करें। अगर रिश्वत की बात होती है तो देखिए कितना कॉमनली होता है कि हाँ रिश्वत के बगैर तो कोई काम ही नहीं होता, सूद के बगैर कैसे कारोबार करें, बैंक से लोन लेंगे तो करेंगे। अब ये चीजें हर चीज में हमारे पास कोई ना कोई बहाना होता है, तो इनके पास भी यही बहाना था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जब कसीर की बात करते हैं तो फिर सारों की बात उसके अंदर आ जाती है। आपको याद है वो हदीस जो हमने पढ़ी थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बस्ती पर भेजा था जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अजाब भेजने के लिए। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रब्बुल आलमीन, इस बस्ती में तो इतना नेक आदमी है जो उसके पास तो दिन से रात तक तेरी इबादत में मसरूफ रहता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा था कि सबसे पहले इस बस्ती पे अजाब इसी घर से शुरू करो कि ये खुद से तो इबादत करता रहा और इसने किसी को नहीं बताया, अल्लाह का पैगाम नहीं दिया। अब यहाँ पे ये देखिए कि मुझे और आपको अल्लाह का कौन सा पैगाम है जो देना है। हमारी भी तो जॉब है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि पहले तो ये उम्मत थी जिसको अहले किताब करें, जिसके बारे में हम पढ़ें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनको फजीलत दी आसमानों और ज़मीनों पे सारी, इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन की बात की। तो आज अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें फजीलत दी है तो इसके साथ जॉब क्या थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो इमामत इनसे लेके, इसीलिए तो हम मुसलमान अपने आप को जो कहते हैं ना कि हम, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना बड़ा दर्जा दिया कि इमामत का फरीजा इनसे लेके मुसलमानों को जो दिया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर जॉब क्या दी थी कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब मुसलमानों को अल्लाह कहते हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुमको मैंने लोगों के लिए पैदा किया ताकि तुम नेकी का हुक्म दोगे और बुराइयों से रोकोगे। तो हम अपना काम कितना सरअंजाम दे रहे हैं, सब अपने आप से पूछें, अपने दिल से पूछें, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है ना। तो आगे देखिए ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा 2 दफा ऐसा हुआ कि वो अंधे और बहरे हो गए, फिर अल्लाह ने माफ किया और फिर वो अंधे और बहरे हो गए।
تو मुफस्सिरीन इसको दो तरह से कहते हैं कि एक दफ़ा तो ये हुआ था कि जैसे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने कत्ल करने की साजिश की और कत्ल किया था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने तो अपनी तरह से सूली पे चढ़ा दिया था। वो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा कि वमा सलबूहु वमा क़तलूहु, कि उन्होंने कत्ल नहीं किया और उन्होंने सूली पर नहीं चढ़ाया, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको आसमान दुनिया पर उठा लिया था। लेकिन इन्होंने तो अपनी तरह से कत्ल कर दिया था ना। तो इन्होंने अंधे हो गए, बहरे हो गए थे, और इन्होंने इतनी बड़ी जुर्रत की कि नबियों को कत्ल करना शुरू कर दिया। और उसके बाद देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अल्लाह ने उनको माफ कर दिया। और फिर सेकंड टाइम जो वो अंधे और बहरे हुए थे कि जब इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को इनकार किया था, जब वो उनको आ गए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आ गए, इनको पता भी चल गया था कि ये हक है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में कहा कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। तो इन्होंने इनकार क्यों किया था? क्योंकि इनको ये था कि ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एक नस्ल में से थे और एक हजरत इसहाक की नस्ल में से थे। इनको ये था कि ये हजरत इसहाक की नस्ल में से क्यों नहीं है, ये हजरत इस्माइल की नस्ल से है। और दूसरा जो इनके उलमा थे, उनको ये था कि अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान जाते हैं तो हमें कौन पूछेगा, हमारी तो अजारादारी खत्म हो जाएगी। तो इस जेलसी में इन्होंने इनकार कर दिया। और सेकंड चीज जो थी कि फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, मुफस्सिरीन कहते हैं कि इनका ये जिक्र है कि जब इन पे बुख्त नसर ने हमला किया था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले की बात है। अब फिर इनको जो है गुलाम बना के बाइबल की तरफ ले गए थे। और फिर जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने माफ किया था तो क्या हुआ था, साइरस ने जब इन पे हमला किया और इनको आजाद किया और उनको वापस भेजा था कि जाके अपने शहर को आबाद करो। और फिर उसके बाद जब टाइटस ने हमला किया था, जो मैं आपको पूरी डिटेल सुना चुकी हुई हूँ, तो फिर ये सेकंड टाइम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इन पे हमला किया था और इनकी ईंट से इन बचा दी थी, और इनके जो बैतुल मक़दस था उसको भी उसने तोड़ दिया था, बर्बाद कर दिया था। तो वहां से उस वक्त तो ये मक्का में आए थे, मदीना में आए थे और आके रहे थे, क्योंकि इनकी किताबों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारे में बताया हुआ था कि आखिरी नबी आएगा और वो कौन से एरिया में आएगा। तो उसके बारे में यहाँ पे फिर बात आती है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो ये कहा करते थे। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और फिर देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या फरमाते हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं सूरत अल-माइदा आयत नंबर 72। और अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू, अलबत्ता कुफर किया उन लोगों ने, क़ालू जिन्होंने कहा, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, हुआ वही तो है, अल मसीह इब्न मरियम, मसीह इब्न मरियम, वक़ालल मसीह, हालांकि मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा था, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, अब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी जो मेरा रब है, व रब्बकुम और तुम्हारा रब है। यहाँ पे देखिए कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि लक़द कफ़रल्लज़ीना, कि कुफर किया। कुफर किस चीज़ को कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला? उनके शिर्क को कह रहे हैं कि वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ शिर्क करते थे, मसीह अलैहिस्सलाम को वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का बेटा कहते थे, या फिर बहुत से लोग थे जो कहते थे कि ये अल्लाह ही हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको यहाँ पे कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि इतनी बड़ी आजमाइश थी उन लोगों के ऊपर कि क्योंकि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो मोज़ात दिए थे, अब देखिए कि आज हमारे सामने अगर कभी ऐसी कोई चीज़ आती है तो हमारा ईमान क्या होता है। अगर हमें कभी कोई ये कह देता है कि फ़लाँ शख्स जो है, अगर उस पीर के पास जाओ तो वो ये करामात कर देता है, वो हम ज़्यादा किस वक़्त हमें तकलीफ़ होती है कि जिस वक़्त कभी अल्लाह ना करे हमारे लव वंस बीमार होते हैं, और वो इतने बीमार हो जाते हैं कि अगर डॉक्टर जवाब दे देते हैं, यूजुअली कैंसर होता है या कोई ऐसी बीमारी आ जाती है कि डॉक्टर जवाब दे देते हैं, उस वक़्त हमारे ईमान बिक जाते हैं। उसके बाद अगर हमें कोई ये कहता है ना कि फ़लाँ जगह फ़लाँ पीर है, अगर उसके पास जाओ तो वो ये कर देता है, वो ठीक कर देगा,
ये घोल के पीने से ये हो जाएगा, वो ये तवीज़ बना के दे देता है, उस वक़्त फिर हमें ये होता है कि हमारे लवंस किसी तरह से ठीक हो जाएं और हम इस तरह से अपना ईमान भी ज़ाया कर देते। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कुफर कह रहे हैं, इसलिए जो शिर्क को पहचानना इतना ज़रूरी है कि कहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला उस चीज़ में, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह एज़ अ मुसलमान हम अल्लाह की ज़ात में शिर्क नहीं करते हैं, लेकिन मुसीबत क्या आ जाती है कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफ़ात में आके शिर्क करने का समझ नहीं आती और वहाँ पे गुलूफ कर जाते हैं। और देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे ये कहते हैं कि हालांकि मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ए बनी इसराइल इबादत करो अल्लाह की जो मेरा रब है और तुम्हारा भी रब है, इन्नहु बेशक वो मैं युशरिक जो कोई शिर्क करेगा बिल्लाही अल्लाह से, फ़क़द हर्रम अल्लाहु तो बेशक हराम कर दिया अल्लाह ने अलैहि उस पर अल जन्ना, अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया, व मावाहु और उसका ठिकाना है अन्नार आग। अब देखिए जब इतनी बड़ी बात हो गई कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उस बंदे को जन्नत में, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जन्नत हराम उसके ऊपर हो जाएगी, और दूसरी बात क्या कि उसका ठिकाना कहाँ पे होगा, आग में होगा। तो ये हमें जानना कितना ज़रूरी है कि हम आखिर इस दुनिया में ऐसा कोई काम ना कर जाए, क्योंकि हमने वो हदीस भी पढ़ी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन क़यामत के दिन शफाअत करेंगे, उस दिन जब वो आखिरी दफ़ा वापस आएंगे तो लोगों को देखेंगे जो पीछे होंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो उस वक़्त वो लोग पीछे रह जाएंगे जिन्होंने शिर्क किया होगा और या फिर जिसको कुरान ने रोका होगा। तो फिर हमें ये जानना कितना ज़रूरी है कि कौन लोग हैं जो शिर्क करते हैं और आखिर वो कितनी गुलूफ किस तरह का कर देते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, क्योंकि कुरान पाक में कह दिया ना कि तुम अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बनाते हो, तो फिर हमें देखना है कि हम किन चीज़ों के साथ शिर्क कर सकते हैं और किन के साथ हम नहीं करते, और जिनके साथ ऐसी चीज़ होती है तो हम उनसे कैसे फासला करें, हम कैसे अपनी सोच को करेक्ट करें। तो अब देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपके साथ कंपैरिजन करती हूँ कि जब हम लोग बात करते हैं, कुछ लोगों का ईमान ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अली हजवेरी के बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा कि वो ये कहते हैं कि अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो ख़जाने अता करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह तूफ़ान से नजात देते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मुसीबतों और परेशानियों से नजात देते हैं। इमाम बरी जो है रहमतुल्लाह अलैह वो कोई जैसे वो होता है ना कि बुरी किस्मत होती है तो वो कहते हैं कि खोटी किस्मतें जो होती हैं उनको खरी कर देते हैं। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह औलाद नवाजते हैं। तो आप ये देखिए कि कभी हमने, या वो लोग जो ऐसे सोच रखते हैं, वो ये भी कभी उन्होंने सोचा कि जब अली हजवेरी नहीं थे तो ख़जाने कौन बांट रहा था, जब मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं थे तो तूफ़ान से नजात कौन देता था, जब अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह नहीं थे तो मुसीबतों से कौन जान छुड़ाता था, जब इमाम बरी नहीं थे तो खोटी किस्मतें कौन खरी करता था, और जब सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह नहीं थे तो औलादे कौन देता था। देखिए एक ही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और अब ये देखिए कि हम कई दफ़ा होता है ना कि जब हम ऐसी हदीस पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम मोमिन हो नहीं सकते जब तक कि तुम मुझसे और अल्लाह सुब्हानहू तआला से, अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से, हर चीज़ से बढ़ के मोहब्बत ना करो। तो फिर हम डर जाते हैं, फिर हमें लगता है कि नहीं, हम इसका मतलब हम किसी से मोहब्बत नहीं करते, हमें दुनिया भी सही नहीं, हम दुनिया से भी मोहब्बत नहीं करते। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद कुरान में कह दिया कि इन चीज़ों 9 चीज़ों की मोहब्बतें थी जिसमें पैसा भी था, शोहरत थी, उसमें गाड़ियों की बात इस सेंस में कि उस वक्त घोड़े थे सवारी के लिए, आज गाड़ियां हैं। तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, इस तरह की चीज़ों की मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिलों में डाल दी है और वही आजमाइश हो जाती है। क्योंकि देखिए इन रिश्तों के साथ या इन चीज़ों के साथ मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है। सिर्फ फ़र्क ये है कि जब हम मोहब्बतें करते हैं
تو ہمیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ اللہ کی محبت کی پرائرٹی ہو، کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے وہاں پہ ہم یہ سارے رشتوں کو ایک سائڈ پہ کر دیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت یہی رشتے تو آڑ میں آتے ہیں نا، کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ جو مال اور تمہارے اولاد ہے نا یہ دنیا کی زندگی کا سب کچھ ہے، یہ زینت ہے دنیا کی زندگی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، والباقیات الصالحات، جو باقی رہنے والا ہے نا وہ تمہارے نیک عمل ہیں، جو تم نیک عمل کرو گے وہی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اور آگے دیکھیے کہ ہم اس میں ایک اور بات میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے اور محبوب سب سے زیادہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں یا رسول ہیں، رائٹ؟ اور پھر ڈیفینیٹلی صدیقین کا درجہ آتا ہے، پھر اولیاء کا آتا ہے، پھر اسی طرح سے ڈیفرنٹ شہداء کا درجہ آتا ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہم اولیاء کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں تو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن میں سورۃ فرقان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا آرائیتا من اتخذ، کیا آپ نے دیکھا